So very good morning to all of you. Today I am going to discuss second part of the environmental science and topic of the today's discussion is soil, noise and thermal pollutions. ठीक, तो आज हम soil pollution के बारे में पढ़ेंगे, noise pollution के बारे में पढ़ेंगे and thermal pollution के बारे में पढ़ेंगे. ठीक, इसमें इसके causes को देखेंगे, इसके effect को देखेंगे and how it can be prevented or measures to stop these pollutions. So let us start today's topic. Now, soil pollution. The soil is a very important constituent of the lithosphere. The word soil is derived from a Latin word solum. तो soil word कहाँ से हमको मिला है? Soil की derivation हुई है solum, which means earthy metals in which growth of plants takes place. So there are some earthy metals in lithosphere part of the earth which we call soil. It plays a vital role in determining the quality and composition of the biosphere. Now, we have to define soil pollution. So, soil pollution is defined as contamination of soil with sewage sludge, industrial sludge, agrochemical and radioactive substances resulting in the reduction of its fertility or productivity of yields of crops. तो soil pollution का मतलब है, देखिए pollution वर्ड हम पढ़ चुके हैं. pollution मतलब any unwanted change in biological, physical aspects of this environment like water, air. ठीक, उसी तरह सेम चीज यहाँ में कि soil pollution का मतलब है कि soil में क्या हमें करना है? pollution means contamination, वो उसकी physical property को change कर दे. ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा कि उसकी fertility या productivity जो होगी उसकी कम हो जाएगी. ठीक है. Now, according to Environmental Pollution Center, soil pollution is defined as the presence of toxic chemicals, that is pollutants or contaminants in soil in high enough concentrations to pose a risk to human health. Right? So, any contamination in the soil, contamination means the presence of toxic chemicals which has adverse effect on human health or on the ecosystem. So that is known as soil pollution. According to Environmental Pollution Centers (EPC), soil pollution को define किया इन्होंने कि the presence of toxic chemicals, that is pollutants or contaminated in soil that has adverse effect on the human health or even on environment. ठीक, इसको बोलते हैं soil pollution. कि soil के composition को change कर देगा जिससे उसकी fertility या productivity क्या होगी? कम हो जाएगी और उससे फिर हमारे ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा. क्लियर? नाउ, so what are the causes of soil pollution? So main causes of soil pollution are discussed. First, industrial waste. So सबसे जो important होता है वो industrial waste. These are the effluents discharged from various industries like chemical industries, paper and pulp mills, textiles, steel industries, thermal and nuclear power plants. तो जो उनके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उससे क्या करते हैं? ये सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करते हैं. ठीक. Now, indiscriminate dumping of industrial waste lead to the leaching of toxic substance into the soil and pollute it. तो जो इनके वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, ये वाटर में क्या सॉइल में क्या करते हैं? लीचिंग हो जाते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस into the soil and then pollute this soil. Now, second, agrochemicals. एग्रो मतलब एग्रीकल्चर. तो a variety of agrochemicals like pesticides, insecticides, herbicides, ये हम जनरली एग्रीकल्चर फील्ड में यूज करते हैं to increase the yield of the crops. These pesticides are persistent in nature for a long time and ultimately reach the soil and causes soil pollution. So these pesticides are also a pollutant for this water and air pollution. ठीक है, तो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हमें यूज करना पड़ता है एग्रोकेमिकल फील्ड में, हमें अपनी यील्ड को बढ़ाने के लिए, क्रॉप को यील्ड को बढ़ाने के लिए. थर्ड वन इज सॉइल इरोजन. ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. इट इज ए कम्प्रेहेंसिव नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट एंड रिमूवल ऑफ लूजेंट सॉइल मटेरियल बाय वाटर, वाइंड और ग्रेविटी. मतलब एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी जो होती है, सॉइल जो होती है, उसका डिटैचमेंट होना, एक जगह से हटेगा दूसरी जगह पे जाएगा, तो उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन. The reason for soil erosion is agricultural development, construction and strip mining activity. तो ये क्यों होते हैं? ड्यू टू
कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, कुछ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करते हैं, या हम माइनिंग एक्टिविटी से भी सॉइल इरोजन होता है। फोर्थ वन इज एसिड रेन। तो सॉइल पॉल्यूशन इज आल्सो कॉज्ड बाय एसिड rain which increases the pH of soil which in turn lowers the fertility of soil। ठीक है, तो देखिए एसिड जो होते हैं मतलब जिनका pH कम होता है, जिनको हम जनरली बोलते हैं जो खट्टे होते हैं एसिड। ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन इज आल्सो कॉज्ड बाय एसिड रेन, क्योंकि एसिड का मतलब है ये क्या करते हैं, इसके pH को बढ़ा देते हैं, सॉइल के pH को बढ़ा देते हैं। और फर्टिलिटी के लिए सॉइल के pH को मेंटेन करना ना बहुत ज्यादा एसिडिक होना चाहिए ना बहुत ज्यादा कम होना चाहिए। ठीक है, fifth one is radioactive substances। So soil fertility is also affected by radioactive substances। The sources of radioactive substances in the soil are explosion of radioactive devices, radioactive waste discharge from industries and research laboratory। ठीक, तो ये से soil pollution भी create करते हैं radioactive substances भी। ठीक है, तो मेनली हमारा क्या हो गया, नंबर 1 अगर कहेंगे तो इंडस्ट्रियल वेस्ट, नंबर 2 एग्रोकेमिकल्स। इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या आएंगे, जो डिस्चार्ज होते हैं, इफ्लुएंट्स होते हैं इंडस्ट्री से। एग्रोकेमिकल्स में क्या आएगा, पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं, हर्बिसाइड्स यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं, जैसे डीडीटी मच्छरों को मारने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारा चूहा मारने की दवा हम यूज करते हैं। तो पेस्ट मतलब होता है इंसेक्ट्स और साइड्स का मतलब होता है किलिंग। तो ये सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। सॉइल इरोजन, देन एसिड रेन, ये इसके पीएच को चेंज कर देते हैं, एंड द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। क्लियर, तो ये 5 पॉइंट्स यहाँ से कॉज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन होने से क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, सो सम इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन आर एज follows। फर्स्ट, सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स व्हिच पॉल्यूट द सॉइल अल्टीमेटली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। तो देखिए कहीं ना कहीं जो भी हम पॉल्यूशन पढ़ रहे हैं वो हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या है, हानिकारक है, उसका एडवर्स इफेक्ट हम पर पड़ता है। The long persistent toxic chemicals accumulate in food chain and ultimately affect human health। तो फूड चेन में आ जाते हैं ये केमिकल्स, ये टॉक्सिक केमिकल्स, एंड देन वहां से होते हुए हमारे ह्यूमन हेल्थ में को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। Radioactive substances affect the soil fertility and also enter the food chain in the grazing animals and causes abnormality in the body of animals। ठीक, तो उसमें जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं जैसे गोट हो गई, ठीक, और फिर उसको इफेक्ट करेंगे, और फिर गोट को क्या होता है हम ह्यूमंस लेते हैं। एक फूड चेन होता है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये फर्स्ट से होते हुए वहां तक आ जाते हैं। When plants grow in polluted soil, the yields is negatively impacted in terms of both quantity and quality। अगर polluted soil में कोई crops हो रही है कोई, तो उसका इफेक्ट उस पे भी पड़ेगा। So many plants are unable to grow on contaminated soil due to pH change। एक तो soil की fertility ये totally depends on pH change। एक soil chemistry अलग से उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, और other changes in soil composition। ठीक, तो इसको ना ज्यादा बहुत एसिडिक होना चाहिए ना बहुत ज्यादा बेसिक होना चाहिए। When soil becomes highly polluted, plant fails to grow। As a result, the soil becomes vulnerable to the erosional forces of both wind and water। Wind can pick up the soil contaminants which remain in air as suspended contaminants। ठीक, मतलब यह में है कि सॉइल पॉल्यूशन कैन आल्सो लीड टू एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। ठीक, तो सॉइल पॉल्यूशन होने से क्या होता है, ये एयर पॉल्यूशन को भी क्रिएट कर सकता है और वाटर पॉल्यूशन को भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि सॉइल इरोजन होगा, मतलब सॉइल वाली पॉल्यूटेड सॉइल है तो वो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। हो सकता है वो जाके किसी रिवर में, किसी वाटर बॉडीज में मिक्स हो गया, तो उसके जो केमिकल्स है, टॉक्सिक केमिकल्स, वो वाटर में जाके मिल जाएंगे। जब वाटर में जाके मिल जाएंगे तो फिर वो क्या होगा, उसको जैसे पेस्टिसाइड्स है, एग्रीकल्चर रन ऑफ हुआ, दैट इज रिच इन पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, जो हमने एग्रीकल्चर फील्ड में यूज किया वो जाके किसी वाटर बॉडीज में मिल गया, तो जो उसमें के टॉक्सिक मटेरियल्स थे वो आके वाटर में मिक्स हो गया, तो इससे क्या हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया। ठीक, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस थे सॉइल पॉल्यूशन में, जो जिन्होंने सॉइल को क्या किया था, पॉल्यूट किया था, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, एयर पॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसी को यहाँ में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो एक इसका नेगेटिवली इम्पैक्ट भी है किस पे, एयर पे और वाटर पे।
तो सॉइल पोल्यूशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉइल को ही अफेक्ट करेगा, वो एयर पोल्यूशन भी क्रिएट करता है, वाटर पोल्यूशन भी क्रिएट करता है, और इन दोनों का नेगेटिवली इम्पैक्ट क्या होता है हमारे आपके हेल्थ पे है। ठीक है, अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है क्योंकि क्रॉप की फर्टिलिटी से भी रिलेटेड है। अब इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? तो listed below are a few things that could help in reducing soil pollution. First, number one, reduced use of chemical fertilizers. जिसको हम कहते हैं ना आजकल ऑर्गेनिक हम फार्मिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उनके यूज को हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा, डिपेंडेंसी को हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा। सो केमिकल फर्टिलाइजर्स डू मोर हार्म देन गुड, while proper amounts could enhance the fertility of the soil. Excess of it actually poisons the soil. तो हमें पहले ये देखना होगा कि हमारी जो मिट्टी है, हमारी जो soil है, उसको कितना जरूरत है। एक एक्सेस अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो वो ऑब्वियसली उसके पीएच लेवल को भी इफेक्ट करता है और उसको पॉल्यूट करेगा। ठीक है, तो जरूरत से ज्यादा हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करना है, जहां तक संभव इसको हमें अवॉइड करना है। बट अगर हमें यूज करना है तो हमें जो परमिसिबल अमाउंट है उसी में यूज करना है। ठीक है, reforestation and afforestation should be promoted. So one of the major causes of soil pollution is soil erosion. तो soil erosion को हमें थोड़ा कम करना होगा, that is caused due to deforestation. तो deforestation से soil erosion हुआ। So it is natural that with the ever growing population, the humankind needs more and more space to expand their civilization. तो डेवलपमेंट के नाम पे, सिविलाइजेशन के नाम पे हम क्या करते हैं, जंगलों को काटते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। Often it is achieved at the cost of the health of the soil. तो इससे soil erosion क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। To prevent this from happening, reforestation of a deforested area should be promoted. मतलब ये है कि अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो उसकी जगह हम कोशिश करें कि 2 पेड़ लगाएं। ठीक है, क्योंकि देखिए काटना तो आसान है बट जल्दी पेड़ हम ग्रो नहीं कर सकते, इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, इसलिए डिफॉरेस्टेशन के साथ साथ हमें रीफॉरेस्टेशन को भी प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक, थर्ड वन इज रीसाइकिल एंड रीयूज प्रोडक्ट्स। तो हमें रीसाइकिल और रीयूज में कॉन्सेप्ट पे आना पड़ेगा। So these steps not only reduce waste generation but also ensure that soil pollution is reduced. क्योंकि waste generation जब कम होगा तो obviously soil pollution भी कम होगा, इंडस्ट्रीज पे वर्कलोड कम पड़ेगा, ठीक, उनके वेस्ट प्रोडक्ट कम होंगे, वहां से अल्टीमेटली क्या होगा, सॉइल पॉल्यूशन या यूनी से एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन भी कम होंगे। प्रमोट यूज ऑफ नेचुरल मैन्योर। तो हमें पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स की जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, मैन्योर को यूज करना पड़ेगा। तो नेचुरल मैन्योर इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द सॉइल। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट सॉइल को चाहिए, प्लांट को, इवन प्लांट को चाहिए, उसके लिए हमें किस पे डिपेंडेंस होना पड़ेगा, नेचुरल मैन्योर पे। सो इट इज हार्मलेस एंड कंप्लीटली ऑर्गेनिक। It adds essential nutrients to the soil and restore the health of the soil. तो उसके soil को, health को क्या करता है, restore करता है। It has no harmful by-products that could harm the soil or the environment in any way. इसमें कोई toxic chemicals नहीं होते, कोई harmful product नहीं होता है। Biodegradable organic waste should be used for generation of biogas. इसको हम यूज कर सकते हैं। सॉलिड वेस्ट शुड बी प्रॉपरली कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड ऑफ बाय एप्रोप्रिएट मेथड। तो हमें सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने का भी हमें एक, ठीक है, साइंटिफिक मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दीज आर द सम स्टेप्स टू कंट्रोल द सॉइल पॉल्यूशन। तो कंट्रोल करने के लिए पहले हमें क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज को थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा, एक्सेस से ज्यादा हमें यूज नहीं करना है। रिफॉरेस्टेशन को हमें प्रमोट करना है, क्योंकि रिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, सॉइल इरोजन से क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन से फिर एयर पॉल्यूशन होता है, फिर वाटर पॉल्यूशन भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें इसको प्रमोट करना पड़ेगा। थर्ड में क्या है, रिसाइकिल एंड रीयूज कॉन्सेप्ट पे आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रिसाइकिल एंड रीयूज कॉन्सेप्ट पे अगर हम आएंगे तो इससे क्या होंगे, वेस्ट जनरेशन जो होगा वो थोड़ा कम होगा। वेस्ट जनरेशन कम होगा तो इंडस्ट्री पे थोड़ा वर्कलोड कम होगा, उनके वेस्ट प्रोडक्ट कम होंगे तो सॉइल पॉल्यूशन भी रिड्यूस होगा। ठीक,
प्रमोट यूज ऑफ नेचुरल मैन्योर, हमें नेचुरल मैन्योर के यूज को थोड़ा प्रमोट करना पड़ेगा। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट को हमें यूज करना पड़ेगा बायोगैस के लिए। एंड सॉलिड वेस्ट जो होते हैं उनको हमें प्रॉपर्ली कलेक्ट करना है एंड देन उनको प्रॉपर्ली डिस्पोज करना है, डिस्पोज ऑफ बाय अप्रोप्रिएट मेथड, जिससे जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं वो सॉइल में या इवन एयर और वाटर में मिक्स ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकंड हमारा है नॉइज पॉल्यूशन। The word noise is derived from a Latin word noisia, which means sickness in which one feels the need to vomit. Okay. Now, noise is the unpleasant and undesirable sound which leads to discomfort in human being. तो noise की definition, noise हम किसको बोलते हैं? तो any unpleasant and undesirable sound जिसका हम पे negative effect पड़े, जिसको सुनने में हमें क्या discomfort हो। The intensity of sound is measured in decibels. इसको बोलते हैं यूनिट जो होती है जिससे हम इन साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं उसको बोलते हैं डेसिबल। ये एक जनरल साइंस का भी क्वेश्चन है। The faintest sound which can be heard by the human ear is 1 decibel. Now noise pollution, अब इसको डिफाइन कर दीजिए। तो is defined as the unwanted or excessive sound that can have deleterious effect on human health, wildlife and environmental quality. तो नॉइज पॉल्यूशन का मतलब है एनी अनवांटेड और एक्सेसिव साउंड, जो बहुत तेज साउंड होता है, ठीक है, जिससे हमें सुनने में क्या होती है, थोड़ी डिस्कम्फर्ट होती है, तो उसको बोल सकते हैं नॉइज पॉल्यूशन। ठीक, नॉर्मली साउंड्स मोर इंटेंस देन 65 डेसिबल आर कॉल्ड नॉइज। तो जो जनरली 65 डेसिबल से ज्यादा आता है उसको हम बोलते हैं noise. Anyway, all the sounds come under noise pollution, which makes the mind turbulent or restless. In fact, any unwanted noise arising in environment which had adverse effect on the health of the organism is noise pollution. तो noise pollution का मतलब हो गया कि कोई भी unwanted noise, बहुत आप ज्यादा तेज हॉर्न बजाते हैं या आपने देखा होगा बाइक चलाते हैं, ठीक, तो उसके साइलेंसर से इतनी तेज आवाज आती है, ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, वो सब नॉइज पॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो नॉइज पॉल्यूशन का मतलब हो गया कि एनी अनवांटेड और एक्सेसिव साउंड, अनवांटेड नॉइज जो एनवायरनमेंट में अराइज हो रहा है, जिसका हम पे क्या हो रहा है, एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, उसी को बोलते हैं नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज को मेजर करने की यूनिट क्या हो गई, डेसीबेल। 65 डेसीबेल तक जो होता है वो नॉइज की कैटेगरी में आएगा, 65 से जितना ऊपर आएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, कितने तरह से नॉइज पॉल्यूशन हो सकते हैं, तो फॉलोइंग आर द 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट नॉइज, देखा होगा आपने, ट्रांसपोर्ट नॉइज, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ ट्रैफिक नॉइज व्हिच हैज इंक्रीज इन रिसेंट ईयर्स विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हीकल्स। ठीक, तो जैसे जैसे पॉपुलेशंस बढ़ रहे हैं, ठीक है, आदमी डेवलपमेंट भी बढ़ रहा है तो व्हीकल्स भी बढ़ रहा है। इंक्रीज इन नॉइज पॉल्यूशन लीड्स to deafening of older people, headache, hypertension, etc. ठीक, कितने शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी, जैसे दिल्ली में आप ट्रांसपोर्ट चलता ही रहता है, तो वहां से भी क्या है, नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट है। सेकेंड, नेबरहुड नॉइज, द नॉइज फ्रॉम गैजेट्स, हाउसहोल्ड यूटेंसिल्स etc. Some of the main sources are musical instruments, transistors, लाउड स्पीकर्स, ये सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे, नेबरहुड। इसके बगल वाले में पार्टी चल रही है, डीजे हो रहा है, बट दूसरे वाले को डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन हम अपनी पार्टी कर रहे हैं, अपनी मस्ती कर रहे हैं, दूसरे वाले को ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। थर्ड, इंडस्ट्रियल नॉइज, इट इज द हाई इंटेंसिटी साउंड व्हिच इज कॉज्ड बाय हैवी इंडस्ट्रियल मशीन्स। अकॉर्डिंग टू मेनी रिसर्चर्स, इंडस्ट्रियल नॉइज पॉल्यूशन डैमेज द हियरिंग एबिलिटी टू अराउंड 20%। तो जो इंडस्ट्रियल नॉइज होते हैं, जो मशीनें चलती हैं, उनसे क्या होता है, जनरली ये रिसर्च में पाया गया कि 20% हियरिंग लॉस होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट नॉइज, नेबरहुड नॉइज, इंडस्ट्रियल नॉइज, तो ये 3 तरह की कैटेगरी होती है नॉइज पॉल्यूशन की, क्लियर। नाउ एग्जांपल क्या कर सकते हैं नॉइज पॉल्यूशन का, अननेसेसरी यूजेज ऑफ हॉर्न्स, कि ट्रैफिक में होते हैं, हम थोड़ा पेशेंस नहीं रख पाते तो कंटिन्यू हॉर्न मारते जाते हैं। Using loudspeakers either for religious function or for political purpose, unnecessary usage of fireworks, ठीक, industrial noise,
कंस्ट्रक्शन नॉइज, नॉइज फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन सच एज रेलवे एंड एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट भी जाता है देखा ना, वहां से आवाज आती है। ये कुछ नॉइज पॉल्यूशन के एग्जांपल्स है। नाउ व्हाट आर द कॉजेज एंड सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन? तो फर्स्ट में आ जाएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन। So it has lead to an increase in noise pollution as the use of heavy machinery such as generators, mills, huge exhaust fans are used, resulting in the production of unwanted noise. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आजकल हो रही है, जब डेवलपमेंट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन जहाँ पे हो रहा है कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो वहां पे हमें क्या होती है कि कंटिन्यूसली नॉइज क्रिएट होता रहता है। जनरेटर चल रहा है, यहाँ से हम एग्जॉस्ट फैन यूज कर रहे हैं, यहाँ से ठीक है मिल्स यूज कर रहे हैं, तो वहां से हमें नॉइज पॉल्यूशन मिलता है। सेकेंड, व्हीकल्स, so increased number of vehicles on the road is the second reason for noise pollution. Third, events, देख कोई हम पार्टी, वेडिंग, public gatherings involve loudspeakers to play music, resulting in the production of unwanted noise in the neighborhood. And fourth one is construction sites, so mining, construction of buildings that lead to the noise pollutions. ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हीकल्स, इवेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स, यहाँ से हमको नॉइज पॉल्यूशन। ओके, नाउ सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ? ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन हमको मिलता रहता है जनरली। नाउ नॉइज पॉल्यूशन कैन बी हैजार्डियस टू ह्यूमन हेल्थ इन फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, हाइपरटेंशन, so it is a direct result of noise pollution which is caused due to elevated blood levels for a longer duration. कि ज्यादा हम नॉइज पॉल्यूशन होता है तो उससे आदमी क्या होता है, हाइपरटेंशन में जाता है, क्योंकि ब्लड लेवल्स को क्या करता है, वो बढ़ा देता है। ठीक है। सेकेंड, हियरिंग लॉस, so constant exposure of human ears to loud noise that are beyond the range of sound, almost 65 decibel, that human ears can withstand damages the eardrums, resulting in loss of hearing. यहाँ जो कान होता है इसमें ईयर ड्रम्स होते हैं, इसको हम लोग जनरली पर्दा बोलते हैं। ठीक है, तो ज्यादा अगर नॉइज पॉल्यूशन होगा, डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा, ठीक, साउंड जो होता है एक तरह का वेव होती है, तो नॉइज पॉल्यूशन ज्यादा होने से वो क्या करता है, उसको डैमेज कर देता है, जिससे हियरिंग लॉस हो जाती है। ठीक, स्लीपिंग डिसऑर्डर, तो नॉइज पॉल्यूशन से क्या होता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर, मतलब लैक ऑफ स्लीप माइट रिजल्टिंग फैटिग एंड लो एनर्जी लेवल थ्रू आउट द डे, अफेक्टिंग एवरीडे एक्टिविटी। ठीक, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज भी आते हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर लेवल, स्ट्रेस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ये भी हमें क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन से मिल जाते हैं, क्योंकि ये ब्लड के सर्कुलेशन से रिलेटेड है, बढ़ा देते हैं। Physiological and psychological changes. So continuous exposure to noise affect the functioning of various systems of the body. So it may result in gastrointestinal and digestive disorders, peptic ulcers and emotional changes. तो ये ह्यूमन हेल्थ पे नॉइज का ये पॉल्यूशन है कि हमें हाइपरटेंशन में हो जाते हैं, हियरिंग लॉस तो होना ही है, होता ही है, स्लीपिंग डिसऑर्डरनेस भी होते हैं कि रात में अगर बगल वाले के घर में पार्टी चल रही है, डीजे चल रहा है रात भर, तो हम सो नहीं सकते हैं जल्दी। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज एंड साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल भी चेंजेस भी बॉडी के अंदर ह्यूमन हेल्थ में मिलते हैं। ठीक है, तो ये जनरली क्वेश्चंस मिलता है हमको, नॉइज पॉल्यूशन का ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। नाउ अब क्वेश्चन आता है इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कि हमें क्या क्या स्टेप्स लेना होगा इन ऑर्डर टू प्रिवेंट नॉइज पॉल्यूशन। सो सम नॉइज पॉल्यूशन प्रिवेंटिव मेजर्स आर प्रोवाइडेड इन द following points. First, number one, honking in public places like teaching institutes, hospitals, etc. should be banned. ठीक, इसलिए नो साउंड जोन लिखा होता है ना, आप देखना हॉस्पिटल के आसपास, स्कूल के आसपास एक आपको बोर्ड लगा रहता है, तो हमें बहुत ज्यादा हॉकिंग नहीं करना है। In commercial, hospital and industrial buildings, adequate soundproof system should be installed. इस तरह के कंस्ट्रक्शन में, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में, ठीक है, हमें साउंड प्रूफ सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहिए। थर्ड वन इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड शुड बी कंट्रोल टू डिजायरेबल लिमिट। ठीक है, आप अपनी पार्टी कर रहे हैं बट दूसरों को डिस्टर्ब ना करें, उतने में ही हमारा लिमिट होना चाहिए। डेंस ट्री कवर इज यूजफुल इन नॉइज पॉल्यूशन प्रिवेंशन, जहाँ में घने अगर पेड़ पौधे हैं, ट्री है, तो उससे क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन को वो प्रिवेंट करते हैं। Explosives should be not used in forest, mountainous and mining
एरिया, वहां में हमें यूज नहीं करना है। एस्टेब्लिशिंग रेगुलेशंस दैट इंक्लूड प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव मेजर्स, तो हमें इस तरह के एस्टेब्लिश रेगुलेशंस को लाना होगा। गवर्नमेंट कैन टेक मेजर्स सच एज प्रोटेक्टिंग certain areas, part of the countryside area of natural interest, city, park, etc. to ensure noise management and reduce noise pollutions. Fines for exceeding noise limits, fine होना चाहिए। Mandatory separation between residential zone and sources of noise like airport. There should be control over noise generated from machine and equipment. तो उसके लिए हम sound proof system use कर सकते हैं, ठीक है। So these are some steps to prevent noise pollutions. Intensive plantation should be made in the entire building complex. तो हमें, ठीक है, प्लांटेशन को बढ़ावा देना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। Protective tools that is ear plugs etc should be provided for workers. जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं उनको ईयर प्लग देना चाहिए ताकि वो साउंड से बच सके। Limits should be set on noise and control over noise pollution by legal provisions. Adequate health education on pollution should be provided through government agencies and voluntary institutions. तो उनमें एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। The use of sound absorber acoustic tiles should be encouraged in the construction of multi-story building. तो ये आज के लिए कि sound absorber acoustic tiles मतलब साउंड को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इससे ज्यादा नॉइज पोल्यूशन नहीं होता है। In industrial, commercial and hospital buildings, adequate soundproof system should be installed. तो हमें soundproof system को यूज करना है, ठीक है। तो नॉइज पोल्यूशन के लिए हमें प्रिवेंट करने के लिए ये कुछ स्टेप्स हैं, आप पॉइंट वाइज इसको कर सकते हैं, एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट्स में लिखने से। इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, ठीक, कॉजेज एंड सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हीकल्स, इवेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स, नॉइज पोल्यूशन के एग्जांपल्स और उनकी डिफिनेशंस, ठीक। तो ये नॉइज पोल्यूशन में हमें मिलेगा, ठीक है। चलिए लास्ट, थर्मल पोल्यूशन। तो थर्मल पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ अनडिजायरेबल हीट। थर्मल का मतलब ही होता है एक्चुअली हीट टू वाटर, thereby making it harmful to man, animal और aquatic लाइफ। तो थर्मल पॉल्यूशन एक तरह से वाटर पॉल्यूशन से ही रिलेटेड है, बस अंतर यहाँ में है कि यहाँ का जो कंटामिनेंट होता है वो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, दे कैन प्रोवाइड अनडिजायरेबल हीट टू वाटर। वाटर को क्या करते हैं, अनडिजायरेबल हीट। दिस नॉर्मली ऑकर्स व्हेन ए प्लांट और फैसिलिटी टेक्स इन वाटर फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स एंड पुट्स इट बैक विद एन अल्टर्ड टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। The pollution of any kind which changes the natural temperature of water at an undesirable scale leads to thermal pollution. तो thermal pollution का मतलब हो गया कि ऐसा pollution जिसमें क्या होता है कि जो नेचुरल टेम्परेचर है वाटर का उसको क्या करते हैं, एक अनडिजायरेबल लेवल तक बढ़ा देते हैं, ठीक है। और वाटर की प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी प्रॉपर्टी वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं थर्मल पॉल्यूशन। तो किस कैटेगरी में आ जाएगा, थर्मल पॉल्यूशन में आ जाएगा। तो थर्मल का मतलब होता है हीट। तो जो वाटर बॉडीज होती हैं जो उनका नेचुरल टेम्परेचर है उसको टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, अनडिजायरेबल लेवल तक बढ़ा देते हैं, तो इसी को बोलते हैं थर्मल पॉल्यूशन। नाउ मेजर पॉल्यूटेंट्स ऑफ थर्मल पॉल्यूशंस। सो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये फॉर्मूला आपको लिखने के लिए बताया था। कार्बन मोनो मतलब 1, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CO। कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स आर वन ऑफ द मेन कंट्रीब्यूटर्स फॉर एमिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो थर्मल पावर प्लांट जहाँ में क्या करते हैं, थर्मल का मतलब हीट, पावर प्लांट जो होते हैं वो कोल फायर्ड कोयला यूज करते हैं, वहां से एक्चुअली क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इमिट होता है, which is produced due to the combustion process when coal is burned. एक्चुअली केमिस्ट्री में क्या है, किसी चीज को जब हम जलाते हैं तो उसको बोलते हैं कंबशन। एक कंप्लीट कंबशन होने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इनकम्प्लीट कंबशन होने से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है। सेकेंड, हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स बनने से मीथेन, CNG, compressed natural gas. तो all the materials used in the form of fuel in different carriers having hydrocarbon. Burning of them causes hot gases in the atmosphere and thereby increasing the temperature of the atmosphere.
इट हैज एन इफेक्ट ऑन द स्किन कॉजिंग स्किन डिजीज एंड स्किन कैंसर। ठीक, तो हाइड्रोकार्बन्स और कोल की बर्निंग से क्या होता है, थर्मल पॉल्यूशन क्रिएट होते हैं, क्योंकि इन जब किसी चीज को बर्न करेंगे तो हमें हीट लाइट और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। ठीक है, थर्ड वन इज फ्लाई एश। So the particles of burnt fuel accompanying gases emanating from industrial house which keep flying in the air. They are quite hot and increase the temperature of the atmosphere which has a bad effect on plant and vegetation. ठीक है, तो यहाँ से क्या होती है, गर्म होते हैं, गर्म चीज होती है जल्दी क्या होती है वो ऊपर आती है, तो उसकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होता है कि ये एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं और उसके टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। The oxides of sulfur and nitrogen. The burning of coal releases sulfur dioxide. This gas is 75% of the total emitted gas in the environment. सोचिए 75% हमें कहाँ से मिलता है, बर्निंग ऑफ कोल, और ये हम मेनली कहाँ आते हैं, इंडस्ट्री में यूज करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं। According to one estimate, 100 millions of sulfur dioxide reaches the atmosphere in the world per year. एक साल में 10 millions of sulfur dioxide एटमॉस्फेयर में मिक्स हो रहा है, रीच हो रहा है। Sulfur dioxide has adverse effect on the eyes and respiratory system as well as on the monuments of archaeological importance. क्योंकि इसलिए होते हैं क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से मिक्स होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, और सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है एसिड रेन के फॉर्म में नीचे आता है, जिससे उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इन नॉन थर्मल पावर स्टेशंस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर आल्सो इमिटेड which include nitrous oxide, nitric oxide and nitrogen dioxide. तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, इसलिए इनको शॉर्ट में NOx हम एयर पॉल्यूशन में पढ़ा है। They adversely affect the environment and give rise to various diseases. तो ये भी हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉल्यूटेंट्स थे जहां से थर्मल पॉल्यूशन क्रिएट होगा। Now causes of thermal pollution. So water as a cooling agent in power, manufacturing and industrial plants. The production and manufacturing plants are the biggest source of thermal power. तो सबसे बड़ा हमारा जो मेन सोर्सेज है वो क्या होता है, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, जहाँ में किसी चीज को प्रोडक्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वहां से आता है। लेकिन एक्चुअली क्या करते हैं, these plants draw water from a nearby source to keep machines cool. देखा होगा आपने ना, जहाँ में कंटिन्यू मशीन चलती है वहां में ठंडा पानी उसको कंटिन्यूसली देते रहते हैं। ठीक, वो एक साइड से वाटर को ले रहा है नियर बाई से मशीन को, और मशीन जो वर्किंग कर रही है उससे क्या होता है, वो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, और वो जो पानी ठंडा था वो फिर क्या होता है, गर्म हो जाता है। एंड देन रिलीज बैक टू द सोर्सेज विद हायर टेम्परेचर। ठीक, अब वो जो पानी वापस आ रहा है वो क्या है, हीट हो गया, गर्म हो गया। तो व्हेन हीटेड वाटर रिटर्न्स टू द रिवर और ओशियन, द वाटर टेम्परेचर ऑब्वियसली क्या होगा, राइज शार्पली। तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज है BOD, COD, डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो एक्वेटिक लाइफ के लिए हमें इंपॉर्टेंट होती है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन इज अनदर मेजर फैक्टर दैट कॉजेज थर्मल पॉल्यूशन। देखिए सॉइल इरोजन एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन को भी है, ठीक है, थर्मल पॉल्यूशन को भी ये इफेक्ट करता है। Consistent soil erosion causes water bodies to rise, making them more exposed to sunlight. The high temperature could prove fatal for aquatic biomass as it may give rise to anaerobic condition. ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है एन और एरोबिक और एनाएरोबिक का मतलब होता है, एरोबिक का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक, एनाएरोबिक कंडीशंस का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो थोड़ी कम हो जाएगी। Deforestation, so trees and plants prevent sunlight from falling directly on lakes, ponds or rivers. When deforestation takes place, these water bodies are directly exposed to sunlight and thus absorbing more heat and raising its temperature. देखिए पेड़ पौधे इतने इंपॉर्टेंट है, डिफॉरेस्टेशन होने से थर्मल पॉल्यूशन भी क्रिएट होगा। So deforestation is also the main cause of higher concentration of greenhouse gases, जो आगे पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग, ये भी नेक्स्ट आगे आएगा इन द एटमॉस्फेयर। ठीक, तो यहाँ से भी थर्मल पॉल्यूशन क्रिएट होते हैं। नेचुरल कॉजेस, so natural causes like volcanoes, geothermal vents and hot spring under the ocean and sea can trigger warm lava to raise the temperature of water bodies. ठीक, जिसको बोलते हैं ज्वालामुखी फटना,
तो ये जो लावास होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर बॉडीज के टेम्परेचर को भी बढ़ा देते हैं। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, so generation of hydroelectric power sometimes lead to negative thermal loading in water, ये वाटर को थर्मल टेम्परेचर को भी यहाँ पे भी अफेक्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक पावर इंडस्ट्रीज, वेरियस फैक्ट्रीज विद कूलिंग रिक्वायरमेंट कंट्रीब्यूट टू थर्मल लोडिंग, थर्मल पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं। डोमेस्टिक सीवेज, so domestic sewage is often discharged into rivers, lakes, canals or streams without treating the waste. The temperature of municipal water sewage is normally high than receiving water. तो जो हमारा डोमेस्टिक सीवेज होता है वो भी क्या करते हैं, वाटर बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, and they can create thermal pollution also. ठीक, so these are some causes for the thermal pollution. Natural cause, hydroelectric power, domestic sewage, वाटर जो हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड प्लांट्स में, कि हम ठंडा पानी तो ले रहे हैं बट हम वापस में क्या कर रहे हैं, गर्म पानी ले रहे हैं। सॉइल इरोजन एंड ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन, so these are some points which can cause thermal pollution. ठीक, now इससे इफेक्ट क्या होता है थर्मल पॉल्यूशन होने से, तो डिक्रीज इन DO, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल, द वाटर टेम्परेचर रिड्यूस द लेवल ऑफ DO, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वाटर में जो DO डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, और ये जो DO होते हैं जब कम हो जाएगा तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ठीक, तो दे कैन क्रिएट सफोकेशन फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स सच एज फिश, एम्फीबियंस एंड कोपेपोड्स व्हिच मे गिव राइज टू एन एरोबिक कंडीशन। ठीक, तो उससे फिर एक्वेटिक एनिमल्स पे इसका एडवर्सली इफेक्ट पड़ेगा। Increase in toxicity, so high temperature discharge from industries increase the toxicity of poison present into the natural body of water. 10 degrees Celsius rise in temperature doubles the toxic effect of potassium cyanide. So this one is very toxic chemicals for human beings that may have a harsh impact on the aquatic species. So जैसे 10 डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो टॉक्सिक इफेक्ट जो होता है पोटेशियम साइनाइड का जस्ट डबल हो जाता है। Loss of biodiversity, so since temperature is considered to be a vital role for aquatic organisms, the biological activity in the water may cause a significant loss of biodiversity. Ecological impact, so sudden thermal shock can result in mass killing of fish, insects, plants and amphibians. जो बहुत सारे aquatic animals होते हैं उनको ये adversely इफेक्ट करते हैं, बहुत सारे केसेस में तो ये खत्म ही हो जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, क्योंकि वाटर की प्रॉपर्टी जैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन है, BOD, COD सब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। Affects reproductive systems. A significant halt in reproduction of marine wildlife can happen due to increasing temperature, as reproduction can happen within a certain range of temperature. Excessive temperature can cause the release of immature eggs and can prevent the normal development of certain eggs. बहुत सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके रिप्रोडक्शन पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि जब टेम्परेचर ज्यादा होने से उनके इमेच्योर एग्स होंगे एंड देन कैन प्रिवेंट द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन एग्स। ठीक है, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, तो फिशेस हुआ मार्क्ड राइज इन बेसल रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म विद राइज इन टेम्परेचर, इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है फिश पे। Thermal pollution increases the metabolic rate of organisms as increasing enzyme activity occurs that causes organisms to consume more food than what is normally required if their environment were not changed. तो temperature change होने से उनके metabolic rate पे भी फर्क पड़ता है। Enzyme activity also depends on temperature. Effect on marine life. So warm water can also cause particular species of organisms to migrate to a suitable environment. मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह, क्योंकि यहाँ का वाटर बॉडी जगह ज्यादा गर्म हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, ठीक है, मान लीजिए DO कम हो गया, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो गया, तो वो दूसरे जगह पे माइग्रेट करना चाहेंगे। Environment that would cater to its requirement for survival. This can result in a loss for those species that depend on them for their daily food, as their food chain is interrupted. ठीक, तो अब उनका माइग्रेशन शुरू होगा, एक जगह से दूसरे जगह वो जाएंगे। ठीक है, so these are some effects of the thermal pollution. ठीक, now अब क्वेश्चन आता है कि इसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे। तो कुछ इसमें जो मेन सॉल्यूशन है इसका, कि पहला हमें क्या करना है कि थर्मल डिस्चार्ज को हमें वाटर बॉडीज में डिस्पोज ऑफ नहीं करना है।
ठीक। तो उसके लिए हमें, बट इंडस्ट्री है तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती ही है, ठीक है, प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, तो वहाँ हमें वाटर को यूज करना है, जो उसका डिस्चार्ज होगा उसको हमें बाहर लाना है। तो उसके लिए नंबर 1 यहाँ हमें कहते हैं कूलिंग पॉन्ड्स। तो हम क्या करेंगे कि जो गर्म वाटर है, जो हॉट वाटर जो इंडस्ट्री से या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से आ रहा है, उसको हम कहीं स्टोर करके, ठीक है, और एक कूलिंग पॉन्ड बना देते हैं। तो कूलिंग पॉन्ड में क्या करते हैं कि वाटर को कंडेंस करते हैं, एक जगह स्टोर करते हैं, फिर नेचुरल इवेपोरेशन से उसको ठंडा होने देते हैं, एंड देन जब ठंडा हो जाएगा, कूलिंग हो जाएगी, तो फिर हम उसको जो वाटर बॉडीज है उसमें डिस्पोज कर देंगे, ठीक है। स्प्रे पॉन्ड्स भी यूज कर सकते हैं। विद दिस मेथड द वाटर फ्रॉम कंडेंसर्स इज कलेक्टेड इन स्प्रे पॉन्ड्स इन विच वाटर इज स्प्रेड, फुहारा बोलते हैं ना, नेचुरल फाउंटेन या इस तरह का जो फाउंटेन, थ्रू नोजल्स टू कन्वर्ट इनटू फाइन ड्रॉपलेट्स। एक नोजल्स के थ्रू इनको फाइन ड्रॉपलेट मिले जाएंगे। हीट फ्रॉम दीज फाइन ड्रॉपलेट्स इज ट्रांसफर टू द एटमॉस्फेयर। तो जो उसमें का हीट था वो ट्रांसफर होगा, तो वो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वन में यूज कर सकते हैं कूलिंग टावर्स। तो आफ्टर यूजिंग वाटर फ्रॉम वाटर सोर्सेज फॉर कूलिंग पर्पसेज, इट इज सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द वाटर बॉडी। तो उसको ठंडा करके फिर हम उसको वापस जो नेचुरल वाटर बॉडी थे उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो डायरेक्ट इमिशन हो रहा था हॉट वाटर का, उसको हम डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ ना करके उसको हम कूलिंग पॉन्ड बना सकते हैं, स्प्रे पॉन्ड्स में यूज कर सकते हैं, कूलिंग टावर में यूज कर सकते हैं, एंड देन इनको फिर हम क्या करेंगे, वाटर बॉडीज में डिस्पोज करेंगे। तो उससे क्या होगा, इनका हीट जो होगा वो डायरेक्टली वाटर बॉडीज में नहीं जाएगा, तो उससे थर्मल पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन और थर्मल पॉल्यूशन में डिफरेंस को समझना होगा। एक वाटर पॉल्यूशन में क्या था कि हमें हम कुछ ऐसे कंटामिनेंट्स, केमिकल्स डिस्पोज ऑफ कर रहे थे जो उसको पॉल्यूट करते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को, कलर को, उसके बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को, केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है। यहाँ वाटर आपका साफ है, बस सिर्फ उसमें थर्मल पॉल्यूशन का मतलब उसमें हीट टेम्परेचर उसको बढ़ा रहा है, एलिवेटेड टेम्परेचर पे ले जा रहा है, ठीक है। नाउ ये हमारा कूलिंग पॉन्ड का जैसे बेसिक आइडिया है कि कैसे इसमें क्या करते हैं। पावर प्लांट से हॉट वाटर को लिया, यहाँ हमें कूलिंग पॉन्ड बना दिया, ठंडा हो गया, फिर आप इसमें से वापस ले सकते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्लांट्स के जो हम यूज करते हैं, हमें पानी चाहिए मशीन को ठंडा करने के लिए, फिर हम इसको वापस रिवर में। ये कूलिंग पॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, ठीक। ये सेकेंड वन, ठीक। तो स्प्रे पॉन्ड्स का भी एयर आउटलेट, इसको पानी को मतलब एक जगह ठंडा कर देना है, डायरेक्टली हमें डिस्पोज नहीं करना है, ठीक है। और वहां से फिर ठंडा होने के बाद तब हम इसको नेचुरल वाटर बॉडी में डिस्पोज ऑफ करते हैं। ये स्प्रे पॉन्ड्स का हो गया, ठीक। यहाँ में नोजल्स लगे हैं, तो हॉट वाटर जो इंडस्ट्री से आ रहा है इसको देखिए यहाँ पे नोजल्स, ये नोजल्स को क्या करते हैं, यहाँ नोजल के थ्रू ये वाटर ड्रॉपलेट्स में आएगा, स्प्रे नोजल्स यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स में आएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे ठंडा हो जाएगा, इसका हीट जो होता है एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो जाएगा, इसका हीट चला जाएगा, मतलब ये कोल्ड हो जाएगा। कोल्ड होने के बाद तब हम इसको फिर कलेक्ट कर लेंगे, एंड देन वाटर रिजर्वायर्स, वाटर बॉडीज में डिस्पोज ऑफ करेंगे, ठीक है। तो डायग्राम तो हमें जस्ट समझने के लिए है, मेन तो हमें पॉइंट्स वाइज ही लिखना है, इतना हमें डायग्राम की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर है, टाइम है तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज मेन तो हमें पॉइंट्स को ही करना है। कूलिंग पॉन्ड्स, स्प्रे पॉन्ड्स एंड कूलिंग टावर्स, ठीक। तो ये थर्मल पॉल्यूशंस, उसका डिफिनेशन, इफेक्ट, ठीक, कॉजेस क्या है, एंड देन इसको कैसे हम प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का सेकंड पार्ट ऑफ दिस एनवायरमेंटल साइंस जो बीएससी, ये बीकॉम सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड यूनिट को हम पढ़ेंगे, इसमें क्लाइमेट चेंज आएगा, ग्रीन हाउस गैसेज है, ग्लोबल वार्मिंग्स क्या है, एंड देन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, ठीक है। सो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया, नोट चाहिए, तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय अरुणाचल।